Hello. Hello. Hi. Hi. Hi guys, my name is Suraj, and so we are natives of Pune actually, and we have moved to mountains about 3 years back. I haven't moved completely. Actually, my mom and dad are the ones who have sort of taken up the initiative. I am still struggling with my job in Delhi. That Okay. is that is how it is. Uh, so हिंदी में बोला तो चलेगा ना? हाँ 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 चलेगा। हाँ जी। अच्छा। अभी मेरा बेटा तो कम से कम 7-8 साल से दिल्ली में जॉब कर रहा है। हम्म। तो उस टाइम तो हम पुणे में रहते थे और पुणे में मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। अच्छा। हाँ, तो ये दिल्ली से यहाँ बीर में घूमने के लिए आया था। तो ये 2-3 बार घूमने को आया और उसने यहाँ सर्वे किया थोड़ा कि यहाँ कैफे तो सब प्रकार के हैं, लेकिन साउथ इंडियन कैफे एक भी नहीं है। हाँ, फिर उसने सोचा भाई अपनी मम्मी तो बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, तो फिर क्यों ना हम ये साउथ इंडियन कैफे चालू करें। वाओ। तो उसने हमारे सामने प्रपोजल रख दिया। हाँ, लव। तो पहले तो हम बोला यार ये तो ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, हिमाचल किधर पुणे किधर। फिर हमने उसको मना कर दिया। हाँ, लेकिन वो भी ऐसा चिंकुश निकला, वो 6 महीने हमारे पीछे पड़ा वो। funny thing happened. Okay, I was jobless actually when this whole Avaz episode or Peer episode happened in my life. I was in between jobs. I think मेरे 5 साल तक का experience हो रखा था मेरे को, but whatever, I had left my earlier job and I was looking for one, but still wasn't getting the kind of job that I was looking at. And whatever little savings I had, I with one of my friend who was also looking to do something in Beer, I came with him to Beer, and I really loved the place. Like it's not a typical mountain. It has plains. It has like a crazy nature around, and the most important thing, the paragliding, which runs the whole tourism scene here. Yeah. That is what like I felt like. I mean, it was very unique. Like for the first time, I had seen something, a place that is booming on adventure sport, an adventure sport that is, like it's visibly so nice. No, it's like it's almost like कि पतंग उड़ रहे हैं हर रोज आपके घर के सामने. It was that sort of a scene, and I immediately fell in love with it because where we come from, Ahmednagar, it's a small town, but वहाँ पे पतंगों का ना बड़ा सबको बहुत ज्यादा क्रेज है. So जब भी संक्रांत आती है उससे 2-3 महीने पहले तक everybody is like हर रोज के हर रोज पतंग उड़ती है, like the skies are filled with kites basically. Yeah. So it somehow felt similar to our hometown in a way. So yeah. So she is the one, like my mother is the one, because of her taste, we are able to establish this, because there are a bunch of properties or there are a bunch of cafes, right, who are Yeah. able to open up and serve food, but there is that homely touch and that personalized how do I say, it's a flavor, it's a recipe, it's her recipe, and Yeah. people like literally ask her कि auntie है क्या आज, and we sort of like कि अगर आज auntie होगी तो आप खाओगे नहीं क्या. Yeah. So We it's love come to to know that, your but name, auntie and uncle. We love to know your name. नंदा मम्मी का नाम सुनंदा है, मेरा पापा नाम का नाम अनिल अनिल. अनिल है, अनिल। Okay. और Thank एक you. बात बोलता हूँ, हाँ जी। कुछ लड़कियां खाना खाने के बाद किचन में जाते हैं और आंटी को गले मिल के बोलते हैं हमको हमारी मम्मी की याद आ रही है। Oh. I can imagine. इधर क्या होता है, ज्यादा करके लड़का और लड़कियां ज्यादा आते हैं, यंग जनरेशन ज्यादा आता है। हाँ जी। और इसमें क्या होता है, ये लोग एक तो सीखने के लिए बाहर रहते हैं, जॉब के लिए बाहर रहते हैं, है ना, तो इनको घर का खाना नहीं मिलता है। और जब वो इधर खाना खाते हैं तो उनको घर की याद आ जाती है। Exactly. हम वो कनेक्ट कर सकते हैं अंकल, क्योंकि हम दोनों मैं तो अभी भी बाहर रह रही हूँ, मेरी मम्मी पापा से मैं 1 साल से नहीं मिली हूँ, एंड सानिया भी मेरे साथ ही रहती थी, लाइक हम सिंगापुर में साथ में ही थे, तो हमें पता है कि घर के खाने की क्या मतलब इम्पोर्टेंस। अगर कहीं मिल जाता था खाना जो थोड़ा सा भी घर जैसा लगता था तो मतलब होम अवे फ्रॉम होम वाली फीलिंग आ जाती थी, बहुत अच्छी। तो I can imagine। तो आप लोग साथ में सिंगापुर में पढ़ते थे, is it? या Okay.
So Sanya graduated last year, I graduated this year. But अभी क्योंकि travel नहीं कर सकते तो मैं यहीं पे हूँ अभी. हाँ जी. All right. So our next question probably would be जब ये अवा कैफे शुरू हुआ था तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आए थे आपको, या प्रॉब्ली अभी भी मतलब चैलेंजेस कैसे थे और कैसे आपने उन्हें फेस किया? स्टार्टिंग में हमको मतलब प्रॉब्लम इस बात का आया कि जो हम किराना सामान लाते थे, हमारा खाने का, हाँ, जो वो सामान लाते थे तो पुणे में चावल को क्या बोलते हैं, दाल को क्या बोलते हैं, इधर कुछ अलग ही नाम रहता था. तो हम पहले मतलब थोड़ा सा सैंपल के लेके जाते थे और बोलते थे ये चाहिए. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Oh God, ये तो like Pune is probably, I think, I don't know, some 1500 kilometers from this place. Hmm. And so I have lived, like I've been in Delhi for the past 7 years. I was in Bombay also for a year or so. But मम्मी पापा ज़्यादा मतलब पापा ने थोड़ा बहुत travel किया, but mummy has been home like since forever. Okay, and this is in a way her first venture also. So she was also pretty excited. She's somebody who like loves to feed people and she loves cooking. And like imagine at 40 some age, you are able to get to do something and it's your venture also. Exactly. Kicked about it and everything happened like very wholeheartedly. And पर हाँ, initially like to answer your question, मतलब हमको तो यहाँ का कुछ पता नहीं था ना. We just came कि अच्छी जगह लग रही है. And especially the South Indian food in Himachal, like I don't think anybody, मतलब we think it's a very flip idea to serve South Indian food here. Yeah. that is simply put, because South Indian food is like, I am also like I enjoy a lot of other cuisines, but South Indian food somehow feels like, I mean, I can have it every day probably. Like one of the meal of my day could be South Indian. ऐसा मुझे लगता है. And a lot of my friends also really enjoy South Indian, who are from Delhi or who are from different places of India. And I felt there is something there. And क्योंकि मेरे को, I mean, growing up, no, during graduation or during your college days, you have this thing कि यार चले जाते पहाड़ में और कैफे खोल लेते, you know, screw this city life, right? Something similar happened in a way with me. But यहाँ के like, am I going to sell pizzas because I don't know how to make one properly, or am I going to sell pasta, or am I going to bake? And I felt like ये तो घर की बात है, like South Indian food तो हम लोग अच्छे से कर ही सकते हैं. And yeah, they've been really supportive in a way. Like initially they might have rejected the idea, but when they accepted it, they did it like properly. Yeah. How did you make them agree? मतलब I'm imagining if I tell my parents to leave everything and चलो पहाड़ पे चलते हैं, तो बिल्कुल भी ना मानेंगे, बोलेंगे पागल है. कुछ कस्टमर कैफे में आते हैं और मेरे सामने खड़े रह के मेरे को बोलते हैं, अंकल पहाड़ों में साउथ इंडियन खाना हो ही नहीं सकता. बोला ठीक से नहीं बन रही, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे. वो बोला जो चाहे सामान में दूंगा, आप बनाओ. ठंड की वजह से ज्यादा वो फूलता नहीं ना, वाटर जो रहता है वो ज्यादा जल्दी फूलता नहीं. लेकिन सबसे बढ़िया इडली बनती है, आप भी आना. हम तो वेट कर रहे हैं बस कब ट्रैवल खुले. मैं तो इंडिया में भी नहीं हूँ और मैं सानिया को रोज बोल रही हूँ कि मुझे बस पहाड़ों पे जाना है, बस चलते हैं, बस निकलते हैं. फोटोज भी कल भेजी, तब से तो बस ऐसा लग रहा है छोड़ो सब कुछ और चलो. Should I give you like a quick tour of the place? Do you want to see how is it? So, definitely. Okay, so yeah, this is sort of like a small kitchen garden in a way that we have in the front area. Then you walk in. So this is the sort of view, like this is what you get to see around the cafe. This is due to Corona. So yeah, that's the entry. Lovely. Wow. Now whatever we saw in the pictures. That's our doggo, Meera. Yes, we read about her. She's pretty popular. She's probably popular than our food.
Star attraction. That's the backyard. Oh my God. Yeah, this is where you can just sip a Suraj filter would love coffee to or have have an those event here. बहुत सुंदर है, बाप रे, ये क्या, मुझे इसको देख Suraj will have, Actually flying नहीं हो रही है, but I would have shown you yeah, हम नहीं, आके yeah, देखेंगे वो सब अब। हाँ, आके देखेंगे। यहाँ पे दिल्ली से लोग आते हैं और वो बोलते हैं अंकल अभी हम 2 दिन यहाँ रुकेगा, बोलते 2 दिन, लेकिन चौथा दिन आता है, वो बोलता क्या होगा गया ने, अरे जाने को मन नहीं कर रहा है। Lovely. Acha, uncle, auntie, we'd love to know something about the food, like on your menu, like जो भी आप dishes prepare करते हो, उनकी कोई story है या मतलब it was just out of love from home in Pune, or is there a significant story, कोई कहानी किसी भी dish के बारे में? घर में मम्मी बनाती थी, मेरी मम्मी जैसे बनाती थी वैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। पूरा घर का ही टेस्ट सारे हैं, जो घर में बनता है वही यहाँ पे बना रही हूँ। अच्छा, तो सूरज की सबसे फेवरेट डिश क्या है वहाँ पे? सारे फेवरेट है उसके। आपने बहुत खतरनाक प्रश्न किया है, मालूम है क्या? एक बात बोलूं क्या, एक बार 3 लड़के आए थे, वो जयपुर से आए थे, जयपुर से। तो उन्होंने खाना खाया, रात को कैफे बंद होने तक रुके वो। सब कस्टमर जाने के बाद फिर हमारे से बात कर रहे हैं, बोले अंकल हमको थोड़ा बात करना है। मैंने बोला बोलो। तो उन्होंने आंटी को बोला, एक लड़की बोल रही है आप मुझे अपना बहू बना लो यार। मैंने बोला बहू बना, मेरे बेटे को देखा है क्या आपने? वो बोलते हैं अरे अंकल इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो बेटे को क्या देखना है? That's subtly trying to find ristas. एक लड़का भी आया था, उसने चट्टीनाथ डोसा खाया, मेरे को बोलता यार अंकल कोई आपके रिश्ते में कोई लड़की होगा तो मेरी शादी करवा यार, मेरे को बोलता। मैं बोला क्यों? नहीं यार ऐसा खाना मेरे को रोज चाहिए। मैचमेकिंग चल रही है यहाँ तो खाने के लिए। तो आपके जो अभी कैफे में कोई और भी काम करते हैं जो फुल टाइम टीम है, या फिर सिर्फ आप दोनों ही पूरा कैफे है ना, अभी आंटी के हाथ के नीचे एक लेबर है। अच्छा। हाँ, उसके बाद बर्तन के लिए एक लेडीज है, बर्तन साफ करने को। हाँ, फिर बाहर वेटर काम के लिए लड़के लोग हैं। हाँ जी। हाँ, ऐसा अंदर स्टाफ है पूरा आंटी के साथ। हाँ, क्योंकि आंटी को अकेले को नहीं होता ना, जब सब कस्टमर भर जाते तो अकेले से नहीं होता। Yeah, so initially when we started, I think there is still a picture in my Insta. This thing, it was the first weekend. Actually, cafe का हुआ ये था कि हम लोग खोलने वाले थे. I think जिस टाइम पे हम लोग खोलने वाले थे उससे कुछ 6-7 महीने आगे चला गया हमारा लॉन्च टाइम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन इश्यूज दिस दैट। तो एंटिसिपेशन इन अ वे काफी बढ़ गया था, एंड लाइक द वीकेंड और वीक भी ओपनड अप, we were not expecting so many people. Okay, I mean there was literally nobody at the cafe. Dad was probably at the counter. There was no counter also, probably they were just seating. I was the one who was like serving food. Mom was the one cooking. We had one lady who used to do dishes. Okay, this was the 4 people staff we started off with. Like I told you, I was jobless that time, so perfect time. So yeah, I mean we from there now we have a stable staff, and we have a cook who also has like sort of picked up how mom makes it, and she keeps training him. And, yeah, that's lovely. I think Sanya would probably agree on this. So when we started Musafir, जब हमने शुरू किया अपना पूरा काम, तो हम इवेंट्स करते हैं अंकल आंटी। तो हम मतलब आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आके अपना टैलेंट दिखा सके और अपनी जर्नी प्रेजेंट कर सके, अपना उनका जो पर्सपेक्टिव है ट्रैवल का वो दिखा सके लोगों को। तो हमने जब शुरू किया था तो हमारा पहला इवेंट मुसाफिर था, और हम मतलब 10-20 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने सोचा इससे ज्यादा क्या आएंगे लोग, क्योंकि पहली बार कर रहे थे। और जब हुआ, जिस दिन इवेंट हुआ, हम आज तक नहीं भूल पाते, मतलब 100 से भी ज्यादा लोग आए थे।
तो आपने जब ये बताया तो मुझे सिर्फ वो याद आया कि हमारे लिए वो दिन कैसा था, तो आई एम श्योर आपके लिए भी वैसा ही हुआ होगा। एंड जो हम ये अभी कर रहे हैं, not prepared for it, but you're so happy everybody's turned up, and you will make everything to make sure कि everybody gets what they want. डेफिनेटली रात को 11 बजे तक हमने सर्व किया, लेकिन हमें खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हाँ, हम वो बाहर जाके तो कुछ तो दे, पूरा खाना खत्म हो उस दिन तो। अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है, इस पे खुशी होती है कि और अच्छा बनाने। और पूरे भीड़ में प्योर वेज वाला अपना एक ही कैफे। अच्छा, कभी कभी कोई ऐसा बड़ा ग्रुप आता है, तो बड़ा ग्रुप आने के बाद फिर वो सोचते अरे यार ये ओरिजिनल टेस्ट है क्या नहीं क्या मालूम, फिर 8-10 लोग बैठते हैं, सिर्फ एक ही इडली सांभर प्लेट का ऑर्डर देते, और फिर सब लोग पहले टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट करते हैं फिर फटाफट ऑर्डर देना चालू हो जाते हैं। लोग ऐसा डरते हैं ऑर्डर देना कि नहीं देना। लवली। मैं व्यू देख रही हूँ साथ में, और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा। बट आई थिंक इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू। इतना मजा आया आपसे बात करके, और हम बस वेट कर रहे हैं कि कब हम आए और कहानियां सुने और अच्छा सा खाना खाएं आपका। और I think it was such a pleasure talking to you, and thank you so much for reaching out to us, and whatever you guys are doing, would love to meet someday and would love to host you guys here. And yeah, if you guys want to do something here along with us, you're always welcome. Thank you so much. Okay. Thank you. All right. Bye. Thank you. Bye.